ઓકે, દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું ડૉક્ટર સુરેશ પટેલ. અંગદાન, મહાદાન, અંગદાન એ જ જીવતદાન એ શ્રેણીની અંદર આગળ વધતા આજે આપણી સાથે સિવિલ હોસ્પિટલના કિડની વિભાગની અંદર ઘણા વર્ષોથી પ્રોફેસર તરીકે રહી ચૂકેલા ડૉક્ટર વિવેક કુટેસર આપણી સાથે છે. વિવેક કુટેસર, આપનું મંતવ્ય ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. એ સાથે સાથે એસોસિએટ પ્રોફેસર કે જે પીડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ જોવે છે એવા ડૉક્ટર હરી, એ પણ આપણી સાથે આજે જોડાયેલા છે. ડૉક્ટર હરી, આપનું પણ સ્વાગત છે. મિત્રો, એ સાથે આજે આપણે એક એવા વ્યક્તિ કે જેમણે 6 મહિના પહેલાં જ પોતે એક કિડનીના રિસિપિયન્ટ છે. કિડની હોસ્પિટલ દ્વારા એમને પોતાને એક કિડની પોતે લીધેલી છે. એવા એક બાળક અથવા તો નાનો દીકરો કહી શકાય એવા નિલેશભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, જે એમના માટેની પણ આપણને જે માહિતી છે તો એમને પણ જે પોતાના જે અનુભવો થયા છે એ આપણને જણાવશે. નિલેશભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે ખૂબ બધા એપિસોડોની અંદર વિવિધ ચર્ચાઓ કરી અંગદાન અને મહાદાન વિશે. મંતવ્ય ન્યૂઝ આ દિશાની અંદર ખૂબ બધા પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલ, કિડની હોસ્પિટલ દ્વારા પણ ખૂબ બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. પરિણામ સ્વરૂપે આપણને ખૂબ આનંદ થાય કે આ છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર 58 કરતાં પણ વધારે લોકોએ ઓર્ગન ડોનેશન કર્યું છે અને 136 કરતાં પણ વધારે લોકોને આનો લાભ મળ્યો છે. એટલે અમારી જે મુહિમ હતી, અમારો જે ધ્યેય હતો કે લોકો સુધી આ વાત પહોંચાડવી અને લોકોને આ વસ્તુની જાણ થાય. હમણાં જ 3 દિવસ પહેલાં જ એક મુસ્લિમ યુવકે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર પોતાના અંગોનું ડોનેશન કર્યું. બહુ સારી વાત થઈ અને ખૂબ 3 થી 4 લોકોને એનો લાભ મળ્યો. તો સિવિલ હોસ્પિટલની પણ સંપૂર્ણ ટીમ, કિડની હોસ્પિટલ એટલે કે જે આઈકેડી વિભાગ છે એની પણ ટીમ અને આખી જે ટીમ, બધા જે સંયુક્ત રીતે ઘણા બધા એનજીઓ પણ આની અંદર કામ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ સારું, ખૂબ લોકોને આનાથી જીવતદાન મળી રહ્યું છે. તો એ જ શ્રેણીમાં આગળ વધતા આપણે આજે ફરીથી ડૉક્ટર વિવેક કુટેસર, ડૉક્ટર હરિકિશન અને નિલેશભાઈ સાથે આગળ વધીએ. डॉक्टर कुटेसर, आप बताइए मुझे, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सिनारियो है अभी आज इंडिया में, वो अभी कैसे है? कैसे कौन से ऑर्गन का कितने % ट्रांसप्लांट हो रहा है? आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए. इंडिया में एक साल में लगभग 12 से 15,000 ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि एस्टिमेटेड नीड 1.5 लाख से भी ज़्यादा है. तो लेस देन 10% पेशेंट जिनको अंगदान की ज़रूरत है उनको ट्रांसप्लांट मिलता है. 2013 से आज तक इंडिया में लगभग 80,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं. उनमें से अराउंड 65% ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, 25% लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं एंड लेस देन 10% अदर अंगों के ट्रांसप्लांट होते हैं, जिसमें हार्ट, लंग, पैनक्रियाज, हैंड ट्रांसप्लांट, स्मॉल बॉवेल ट्रांसप्लांट एंड मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसमें समावेश है. इसमें जो इंडिया में ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसमें 80 to 85% डोनर्स जो है वो लिविंग डोनर है और 15 से 20% डोनेशन है वो डिसीज डोनर है, जिनको हम कैडावर डोनर बोलते हैं. तो इंडिया में मेनली तो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है. वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया, जिसमें कैडावर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम काफ़ी एक्टिव है. ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में कैडावर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अभी रिसेंटली इनिशिएट हुआ है, बट इट विल एक्सपांड वेरी सून. બહુ સરસ. કુટે સાહેબે આપણને વાત કરી એક તો કે 1.5 લાખ લોકોને જરૂરિયાત છે, આપણે માત્ર 15,000 લોકો સુધી પહોંચી શક્યા છીએ. મંજિલ ખૂબ લાંબી છે, ખૂબ બધું હજી કામ કરવાનું બાકી છે, ખૂબ બધા લોકોને સમજાવવાની જરૂર છે. એટલે આ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે ખૂબ બધું આગળ હજી કામ કરતું રહેવું પડશે. डॉक्टर हरी, अभी जो किडनी हॉस्पिटल है, अभी अपना आईकेडी जो जहाँ पर बहुत अच्छा सा काम हो रहा है, वहाँ का सिनारियो अभी क्या है, आप हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे. आईकेडी जो है वो नॉट ओनली फॉर वेस्टर्न रीजन, गुजरात में ही नहीं बल्कि इंडिया में वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूट कह सकते हैं ट्रांसप्लांट का. और मोस्टली अब हमारे यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही एक्सक्लूसिव है. तो अराउंड 7,000 ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, उसमें से 6,000 अराउंड फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन है और बाकी अराउंड 500 लीवर्स हैं. एंड पैंक्रियास काफ़ी कम है अभी, बट अगेन देर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स विच डज दैट पैंक्रियास ट्रांसप्लांटेशन. और इसमें हमारे पास जितने भी ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं उसमें अराउंड 80% जो हैं वो लिविंग रिलेटेड ही हैं.
सारे जो होते हैं वो या तो उनके फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं डोनेशन में, वैसे ट्रांसप्लांट। जो कैडेवर प्रोग्राम है, जो मृत किडनी की आती है ट्रांसप्लांट, उसका अराउंड 20% भी है। इनफैक्ट इवन इफ इट इज़ लेस देन द लिविंग डोनेशन, स्टिल ये बाकी अब इंडिया के कंपेयर करेंगे तो बाकी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स के हिसाब से ये नंबर्स काफ़ी बड़े ही हैं। और हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन में अलग अलग तरीके के ट्रांसप्लांटेशन हैं जो कई सेंटर्स में नहीं हो पाते हैं पॉसिबल, जैसे कि एबीओ इनकम्पैटिबल। अगर किसी दो पेशेंट्स का एबीओ मीन्स ब्लड ग्रुप में मैचिंग नहीं है, जिसके कारण उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, वो हमारे यहाँ होता है। फिर वैसे ही अगर किसी पेशेंट्स के और किसी रीज़न से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, है ना, तो एंटीबॉडीज वगैरह, तो वो सब भी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे करते हैं। फिर स्वैप डोनेशन है, वो भी हमारे पास। तो स्वैप डोनेशन मीन इसकी किडनी जो दो पेयर्स हैं, अगर किसी भी रीजन से दोनों के मैच नहीं हो रहे हैं तो दोनों का क्रॉस करते हैं, उसका डोनर इसको देगा और उसका डोनर सामने वाले को देगा। तो क्रॉस डोनेशन भी हमारे यहाँ होता है। इनफैक्ट हमारा आईकेडी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर है जो स्वैप डोनेशन करता है। अपना जो आईकेडी सेंटर है डॉक्टर हरी, अभी इंडिया लेवल पे जो काम हो रहा है उनमें हमारा कौन सा नंबर है आईकेडी में? अगर हम स्वैप डोनेशन पे लें तो हमारा जो पूरे इंडिया में ट्रांसप्लांट जितने भी स्वैप डोनेशन होंगे वो उसके हिसाब से अगर 100 होते हैं तो उसमें से मोर देन 70 कम्स फ्रॉम आईकेडी। મિત્રો, આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ કે ગુજરાતની અંદર આપણું જે આઈકેડી કિડની હોસ્પિટલ છે એ ખૂબ બધા ઇનોવેશન, રિસર્ચ અને એની અંદર ખૂબ બધું કાર્ય કરી રહ્યું છે. ડૉક્ટર વિવેક કુટેસર આપણી સાથે છે. એમણે પણ કોરોનાની અંદર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અને ડાયાલિસિસ વિશેના ખૂબ સારા થીસીસો અને ડેઝર્ટેશનને પ્રેઝન્ટ કર્યા કે જે WHO ની અંદર પણ એ બધા પેપરોની નોંધ લેવાઈ. ખૂબ સરસ. આપણી સાથે નિલેશભાઈ જોડાયા છે. નિલેશભાઈ, આપની ઉંમર કેટલી છે? 15 વર્ષ. 15 વર્ષના છે નિલેશભાઈ. એમને એમના ફેમિલીની અંદર નિલેશભાઈને કઈ જ તકલીફ નહોતી, પણ એમના બ્રધરને તકલીફ થઈ અને એમને કરાયું. પછી એમને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એમને કિડનીની તકલીફ છે અને એમને કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવી. નિલેશભાઈ, તમને જે ઓપરેશન થયું, તમને કોઈ તકલીફ કે એવું કંઈ પડ્યું ખરું? ના, કશી તકલીફ તો નથી પડી, પણ છે ડર જેવું લાગતું. અચ્છા, હવે કેવું લાગે છે આજે? આજે તો બહુ સારું છે હમણાં. અચ્છા, એ પહેલા ડાયાલિસિસ કે એવું કંઈ નિલેશભાઈ તમારે કરાવવું પડ્યું હતું? 1.5 વર્ષ ડાયાલિસિસ કરાવવું પડ્યું હતું. અચ્છા, અને તમને કિડની કોણે, તમારા સગામાંથી મળી કે કેડેવરમાંથી મળી? કેડેવરમાંથી. બરાબર. મિત્રો, નિલેશભાઈ જેવા ઘણા બધા મિત્રો જે નાની ઉંમરના હોય અને એમને આવી રીતે આપણી, હવે આખું જુઓ, નિલેશભાઈની ઉંમર 15 વર્ષ છે અને આખી જિંદગી બાકી છે. અને ખૂબ સરસ. આજે તમે જુઓ તો નિલેશભાઈના ફેસ ઉપર 1% ઓલો નથી. જે નોર્મલ હોય એના કરતાં પણ વિશેષ એનર્જીથી નિલેશભાઈ કામ કરી રહ્યા છે. નિલેશભાઈ, તમને આ કર્યા પછી તમારી રૂટીન એક્ટિવિટીમાં, તમારા ભણવામાં કે એમાં ક્યાંય તમને અગવડ કે કોઈ તકલીફ પડતું હોય એવું કંઈ લાગે? ના, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી એટલી બધી તકલીફ નહીં પડી. રૂટીન ચેક પછી રૂટીન વર્ક્સમાં. આમ ડાયાલિસિસ કરતાં કેવું લાગ્યું? સારું લાગ્યું? ડાયાલિસિસ કરવા જવું પડતું અને પછી આ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું તો કેવું રહ્યું તમને? એના કરતાં બહુ સારું. મિત્રો, જોયું કે જો ડાયાલિસિસ છે ખૂબ જ કંટાળાજનક અને ખૂબ જ તકલીફવાળી પ્રોસિજર છે. જો આવી રીતે એક કિડની મળી જાય તો ખૂબ બધી તકલીફોમાંથી બહાર આવી જતા હોય છે. તમે જે ઓપરેશન કરાવ્યું કિડની હોસ્પિટલની અંદર નિલેશભાઈ, એ કેટલો ખર્ચો થયો આપને? એ બધો સ્કૂલ હેલ્થમાંથી. અચ્છા, જો નિલેશભાઈએ વાત કરી બહુ મહત્વની છે કે 18 વર્ષથી નીચેના બાળકોને જો આવી તકલીફ પડે તો સરકાર દ્વારા ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે કે 1 પણ રૂપિયો ઓપરેશનને લગતો ખર્ચો ન થાય. ઓપરેશન પછી જે ખૂબ મોંઘી દવાઓ લેવાની હોય એ દવાઓનો ખર્ચો પણ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો હોય છે. નિલેશભાઈ, આ તમને બધું હોસ્પિટલ દ્વારા અને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે જ છે ને? હા. બહુ સરસ. જો નિलेश खूब सरस बात करी. डॉक्टर हरी, ये जो नीलेश भाई ने बताया उनका केस में उनका ब्रदर को तकलीफ था और उनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके मुताबिक ये जो रिपोर्ट कराया तो उनको पता चला. आप ऐसा कोई कंजेनिटल डिसीज होता है या ऐसा कोई बर्थ से प्रॉब्लम होता है जिनकी वजह से उनको किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है, और ऐसे कौन से डिसीज हो सकते हैं ऐसे? जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो मोस्ट कॉमन जैसे इंडियन सिनेरियो में है उसमें अपन बोलते हैं कैकुट, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. इट मीन्स पैदाइशी ऐसा होता है कि जन्मजात ही जो होती है किडनी हो गए, उसके बाद के जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स हो गए जहाँ से किडनी जो पेशाब बनाती है फिर यूरिनरी ब्लैडर में लेके आती है, तो उस बीच के रास्ते में कुछ इश्यू है, बराबर. तो वो सारी चीज़ों के कारण ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि
बच्चों में किडनी फेलियर या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर उसके हिसाब से कुछ कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसीजेस भी होते हैं, जैसे FSGS हो गया, TMA हो गया, HUS हो गया, ये सारी बीमारियां भी होती है, जिसके कारण बच्चे लोगों में चांसेस होते हैं कि किडनी फेल हो जाए और फिर ट्रांसप्लांट का वो जरूरत पड़े उन लोगों को। ये नीलेश भाई को 15 साल तक पता ही नहीं चला कि उनको प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है कि जी बिल्कुल हो सकता है। और एक्चुअली अच्छा। कई सारे बीमारी जैसे कि हम बोलते हैं इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जैसे नॉर्मल किडनी होती है वो अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर साइज की होती है, और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज में होती है जो किडनी वो अराउंड 16 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट डबल तिबल साइज की हो जाती है। और ये सारी चीजें जो होती है आपको बहुत ही लेट एज में प्रेजेंटेशन होता है ये सब चीज़ों का। जैसे कि फॉर एग्जांपल होंगी तो ये बहुत पहले से, लेकिन हो सकता है एट द एज ऑफ 20, 30, 40, समटाइम्स इट प्रेजेंट्स एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हमेशा करते रहना चाहिए। एटलीस्ट वन ईयरली आपको ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें। और बीपी स्पेसिफिकली, बीपी जो होता है सबसे पहले, ऐसे नीरज भाई थे उनको क्या था, उन्होंने कह रहे हैं कि कोई सिम्टम्स ही नहीं आए थे लेकिन सीधा ट्रांसप्लांट हुआ। तो किडनी की बीमारी होती है बहुत ही लेट स्टेज में प्रेजेंट करती है। तो इसलिए जो स्क्रीनिंग होती है, जो पीरियोडिकली हम अगर किसी को बोले जनरल मासेस को कि भाई आप ब्लड प्रेशर, यूरिन और ब्लड के बेसिक रिपोर्ट्स करते हैं, तो उससे बहुत ही जल्दी आप बीमारी भी पकड़ सकते हैं और ट्रांसप्लांट जो है उसको भी आप डिले कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। મિત્રો એક વસ્તુ આપણને ખ્યાલમાં આવી કે તમે નોર્મલ છો, 15-20 વર્ષ સુધી ફરો છો, પણ છતાંય ક્યાંક શરીરની અંદર ભગવાન દ્વારા એવી રચના કરવામાં આવી છે કે ક્યાંક જો તકલીફ હોય ને તો એની કમ્પેન્સેટરી મિકેનિઝમો ક્યાંક ને ક્યાંક કુદરત દ્વારા ચાલુ થતી હોય છે। પણ જો ફેમિલીની અંદર ક્યાંક આવી હિસ્ટ્રી મળે તો આપણા પરિવારની અંદર દરેક લોકોનું, જેમ ડૉક્ટર હરિએ વાત કરી કે સ્ક્રીનિંગ એટલે કે એનું વર્ષે ટેસ્ટિંગ અમુક વસ્તુ કરાવતી રહેવી જોઈએ। ઘણી બધી વખત ઘણા બધા લોકોને મોડી ખબર પડે, એના કારણે કદાચ ક્યાંક એવી પરિસ્થિતિ આવે કે એ સમય વીતી ગયો હોય। આજે નિલેશને આપણે જોઈએ છીએ કે જો એને વહેલા ખ્યાલ આવી ગઈ તો આજે એને ખૂબ સરસ રીતે આજે આપણી સાથે બેઠો પણ છે, એનું ભણવાનું કામ પણ ચાલુ છે અને એની આ કર્યા પછી એને कोई જ तकलीफ नहीं। डॉक्टर हरी, ऐसा हो सकता है अभी नीलेश का ट्रांसप्लांट हुआ तो अभी उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा, या अभी अपना रूटीन काम, अपना जो लाइफ, जो उनकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो वही मेंटेन रहेगी? नहीं, एक बार जब ट्रांसप्लांट हो जाए तो जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांट कोई इंसान अगर जो है वो डायलिसिस पे है जैसे कि, तो डायलिसिस के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, फ्रॉम हार्ट डिसीज टू लंग डिसीज टू रिकरेंट इन्फेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती रहती है। तो एक बार ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपका डायलिसिस रुक जाता है, खाना पीना भी अच्छा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। तो ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट वी कैन से फॉर ESKD डायलिसिस पेशेंट्स। बट इसमें ऐसा होता है ना कि एक बार ट्रांसप्लांट हो गया फिर भी कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस का हमको ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे रूटीन पेशेंट्स जो है उनसे अलावा थोड़ा अपने केयर लेना पड़ता तो है। इन्फेक्शंस का स्पेसिफिकली उनमें ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर विवेक कुटे सर जी, अभी जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, हमने देखा कि ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर एक ट्रांसप्लांट करना है किसी को तो प्राइवेट में उसको कितना एक्सपेंस लगता है, और अगर अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए, IKD में कराए, तो उसको कितना एक्सपेंस लगता है, उनके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे? किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़्यादा तो सुविधाएं लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर में है एंड लेस देन 20% गवर्नमेंट सेक्टर में है। अगर आप बाकी अंगों के लिए देखेंगे जैसे हार्ट, लंग, पैनक्रियाज, स्मॉल बॉवेल, हैंड ट्रांसप्लांट एंड मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये ऑर्गन के लिए तो मेजॉरिटी, जैसे आप बोल सकते हैं कि 90 to 95% ट्रांसप्लांट ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं। अभी किडनी इंस्टीट्यूट ये इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ट्रांसप्लांट के लिए। हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3.5 लाख रुपए लगते हैं, तो वही प्राइवेट सेक्टर में लगभग 7 से 10 लाख लगेंगे। अगर बड़े सिटी है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, छोटे सिटी है तो कम पैसा लगेगा। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए किडनी हॉस्पिटल अहमदाबाद में 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं, वही कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 40 से 60 लाख तक हो जाएगी। IKD में खाली किडनी, लिवर एंड पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट होते हैं। हार्ट, लंग, हैंड, स्मॉल बॉवेल ये ट्रांसप्लांट सुविधा गुजरात में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, और वही हम ये प्राइवेट हॉस्पिटल में करने जाएंगे तो लगभग ये ऑर्गन के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है।
और जो गवर्नमेंट की सुविधा है जैसे PMGY है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट की सुविधा है जैसे माँ योजना है, ये जो गवर्नमेंट की सुविधा है खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। तो कॉमन मैन के लिए अगर सभी ट्रांसप्लांट की सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है तो कॉमन मैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा मिलेगा। अर्थात 20 થી 30% અંદર પ્રાઇવેટ કરતા 20% ચાર્જની અંદર ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં ખૂબ સારી રીતે, ખૂબ સારી ટીમ દ્વારા અને ખૂબ સારા મશીનો અને ઇક્વિપમેન્ટ દ્વારા ખૂબ સરસ રીતે સારવાર થતી હોય છે. કદાચ ક્યારેક આપણે જો જોવાનું થાય તો કિડની હોસ્પિટલ એક ખૂબ પ્રાઇવેટ સેક્ટર કરતાં પણ કેર લેતી, પછી એ ચોખ્ખાઈની વાત હોય કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એ ખૂબ સારી રીતે વ્યવસ્થા જાળવી અને સરસ ऑपरेशनों ત્યાં થતા હોય છે. कुटे सर, अभी एक बात अभी हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा कोई एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अभी बना हुआ है. तो ये जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उनके अंदर जो लोगों को अगर कोई तकलीफ है तो केंद्र सरकार उनको क्या क्या मदद करती है वो हमारे दर्शक मित्रों को बताएंगे. अभी जो नया केंद्र सरकार की तरफ से आया हुआ है तो उनके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश देंगे. NOTP यानी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, राइट. इसका ऑफिस दिल्ली में है और NOTP के अंतर्गत ट्रांसप्लांट पेशेंट, डोनर और ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल को बहुत सारे इकोनॉमिक सपोर्ट्स है. जैसे अगर जो कैडावर डोनर है उनको 10,000 रुपये का फ्यूनरल एक्सपेंस मिलता है. फिर कैडावर डोनर के मेंटेनेंस के लिए 1 लाख रुपए का डोनर मेंटेनेंस चार्जेस होता है कि जब सेकंड एपनिया टेस्ट हो जाती है तो डॉक्टरों की टीम पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित कर देती है. जब पेशेंट ब्रेन डेड घोषित हो जाता है तब से लेके ऑर्गन रिट्राइवल तक काफ़ी खर्चे की ज़रूरत होती है, तो वो खर्चा ये 1 लाख रुपए में कवर हो जाता है. फिर पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशन के लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ इसमें दिया जाता है, मेनली फॉर द BPL पेशेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन. फिर अगर ट्रांसप्लांट सेटअप चालू करना है तो ये 1.5 करोड़ सपोर्ट है इसमें. और एग्जिस्टिंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को अगर आपको अपग्रेड करना है या एग्जिस्टिंग या कोई नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्राइवल सेंटर चालू करना है उसके लिए 75 लाख से. फिर अभी हमने देखा है कि आजकल में जो ऑर्गन ट्रांसपोर्ट होता है वो एयरलाइन से भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है. तो जो नया NOTP गाइडलाइन है इसके अंतर्गत जो एयरलाइन ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा इसमें इंक्लूड है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बढ़ाने के लिए, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अफोर्डेबल करने के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट और हॉस्पिटल इसका फ़ायदा ले तो सबसे अच्छा रहेगा. બહુ સરસ વાત કરી સાહેબે કે ભાઈ આ વિષય ઉપર કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર અને ખૂબ બધા NGO ખૂબ જ ધ્યાન આપી અને કામ કરી રહ્યા છે. તમે જુઓ આજે હોસ્પિટલ સેન્ટર એટલે કે ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સેન્ટર બનાવવાથી માંડી અને કેડેવર એટલે કે જેને દાન આપ્યું છે એનાથી લઈ ઓર્ગન ટ્રાન્સપોર્ટેશન સુધીની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા નાની નાની વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લઈ અને બધા જ વસ્તુ માટે આટલું બધું રસપૂર્વક કામ કરી રહી છે. આજના પ્રોગ્રામ દ્વારા આપણે આજે NOTP સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને રાજ્ય સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ કે આ વિષયની અંદર એટલો રસ લીધો અને નાનામાં નાના માણસને ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકાય અને નાનામાં નાના વ્યક્તિને પણ જો તકલીફ પડી હોય તો આ વસ્તુનો લાભ લઈ શકે એના માટેની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા ખૂબ જ સરસ ઊભી કરવામાં આવી છે. ये डॉक्टर हरी, ये जो सोटो, रोटो, नोटो, ये जो सब है, जो ऑर्गेनाइजेशन सब बनाया हुआ सरकार ने, वो चीज़ क्या है, आप शॉर्ट में बताएंगे हमको? जी, ये सारे जो टर्म्स हैं जैसे सोटो, नोटो एंड रोटो. तो नोटो इज अ नेशनल बॉडी, सेंट्रल बॉडी. इट्स ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद रीजनल बोलते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो रीजनल नॉर्थ में है एक सेंटर, एक ईस्ट वेस्ट और एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 5 है टोटल. जो रीजनल होते हैं 5 होते हैं. फिर सोटो होता है, सोटो स्टेट वाला होता है. तो जैसे हमारे यहाँ सोटो में जो है वो IKD जो है वो एक पार्ट है, लेकिन हमारा जो सोटो है वो जो रोटो है वो KEM मुंबई में है. तो देखा है तो नोटो जो होता है वो सेंट्रल बॉडी है, उसके अंदर आपके आते हैं रीजनल वाले,
ठीक है, उसके बाद आखिरी में आते हैं सोटो State सोटो स्टेट वाले। તો કેન્દ્ર સરકાર, પછી એક રિજિયોનલ બોડી અને પછી એક સ્ટેટ લેવલની બોડી અને એ પછી હોસ્પિટલ લેવલની બોડી. એટલે ખૂબ સરસ આનું આયોજન થયું છે. આયોજન કરવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ હતો સરકાર દ્વારા કે ભાઈ કોઈને મિસમેનેજમેન્ટ ન થાય અને આજની તારીખે એટલી બધી સિસ્ટમ સાઉન્ડ પ્રૂફ છે કે એની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ વચ્ચેથી ડોનેશન લઈ ના શકે. જેનો જે ક્રમ મુજબ નંબર આવતો હોય એ મુજબ જ એને બોડી મળે. નિલેશ, આપને પૂછીશ કે આપ ડાયાલિસિસ કરાવતા હતા, કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું, ત્યારે આપને કોઈ ખર્ચો થયો હતો? ના, કોઈ ખર્ચો નતો થયો. તમારા પરિવારને આમ કેવું રહ્યું આ થાય? તમારો જે પરિવાર છે ને આર્થિક બોજો એટલો ઓછો થઈ ગયો તો તમને અને તમારા પરિવારને એવું થયું કે ના સરકાર દ્વારા આટલું સરસ કામ થયું તો તમને આમ લાગ્યું કે ભાઈ ના સારું થયું, આટલી બધી સુવિધાઓ? તમને ખ્યાલ હતી પહેલા કે અહીંયા આવ્યા પછી જ ખ્યાલ આવ્યો? ના, આ તો અમને અહીંયા આવ્યા પછી ખ્યાલ આવ્યો, પણ મને અને મારા પરિવારને બહુ સારો લાગ્યો આ સરકારનો. બરાબર. તમને એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો નથી નિલેશભાઈ? ના. अच्छा अच्छा, बहुत सरस. विवेक कुटे जी, आपको ये बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया डॉक्टर हरी ने कि ये जो स्वेप वाली बात बताई, जो मैं समझा वहां तक अगर किसी को ब्लड ग्रुप कोई अपनी फैमिली से दे रहे, उनका मैच नहीं हो रहा है, तो उनमें ये जो स्वेप बता रहे थे, आप थोड़ा सा डिटेल में स्वेप टेक्निक क्या है वो हमारे दर्शक मित्रों को समझाएंगे? अभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जब परिवार के लोग किडनी डोनेशन में आगे आ जाते हैं तो बहुत सारे समय हमें पता चलता है कि उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है. किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है तो उसका लॉन्ग टर्म जो आउटकम है वो सबसे अच्छा होता है. मान लो कि 2 पेशेंट है और 2 डोनर है, उनका ब्लड ग्रुप खुद के परिवार के सदस्य से मैच नहीं होता है तो हम उनकी एक कंप्यूटराइज रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं और 2 एक दूसरे से वो डोनर एक्सचेंज करते हैं. तो इसको बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट या क्रॉस ओवर ट्रांसप्लांट. और ये ट्रांसप्लांट के लिए हम उसमें देखते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ किडनी हो रही है वो दोनों का किडनी सिमिलर क्वालिटी होनी चाहिए और दोनों जो 2 डोनर हैं उनका एज ग्रुप भी सिमिलर होना चाहिए. બહુ સરસ કુટે સર. આ જો સાદી ભાષામાં સમજાવું ને તો બે જ વ્યક્તિ આપણે હોઈએ, માની લો કે મારા કોઈ રિલેટિવ મને કિડની આપવા માંગે છે પણ મારા રિલેટિવના બ્લડ ગ્રુપ અને મારું બ્લડ ગ્રુપ મેચ નથી થતું, પણ માની લો કે બીજા કોઈ વ્યક્તિ છે એને પણ એના રિલેટિવ આપવા માંગે છે, એનું પણ એને મેચ નથી થતું, પણ જો એના રિલેટિવનું ગ્રુપ મારા સાથે મેચ થતું હોય અને મારા રિલેટિવનું જો એમની સાથે મેચ થતું હોય તો સરકાર દ્વારા એક આયોજન છે જેને સ્વેપ પદ્ધતિ કે અને એકબીજા બંને પેશન્ટોનું અને બંને લોકોનું કામ થઈ શકે. તો આ પદ્ધતિ એક સરકારે પણ એક ખૂબ સારું આયોજન કર્યું છે. આજના આપણા એપિસોડની અંદર નિલેશભાઈ, આપ, ડૉક્ટર હરી અને ડૉક્ટર કુટે સર, આપ અમારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા અને દર્શકોને માહિતી આપી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી પાછા આવતા શનિવારે આ જ સમયે આપણે મળીશું. ધન્યવાદ.